গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে আবার একটা নতুন সকালে নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই ফ্রম পিএস ব্লগস। আজকে আমি হচ্ছে আগ্রায়। আজকে এখন তিনটে জিনিস করব, তিনটে। ফার্স্ট যাব হচ্ছে তাজমহল, সেকেন্ড যাব হচ্ছে আগ্রা ফোর্ট, অ্যান্ড থার্ড যাব হচ্ছে ফতেপুর সিক্রি। তো আজকে একটু প্ল্যানটা লম্বা আছে, সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকবেন, ভালো লাগবে আশা করি। আর ব্লগিংটা কেমন লাগছে জানাবেন। যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন ফটাফট করে ফেলুন। চলুন তাজমহল দেখতে যাওয়া যাক, আর তারপরে যাব হচ্ছে ফতেপুর সিক্রি। পুরো ব্লগিংটা দারুণ হতে চলেছে আজকে, তো দেখতে থাকুন সবাই। ওকে, গুড মর্নিং। সবাই রেডি হয়ে গেছে, এখন সব রেডি। আমরা এখন বেরিয়ে এখন যাব সোজা তাজমহল। কিন্তু ওয়েদার খুব খারাপ, ফগ আছে। ওয়েদার খারাপ না, ওয়েদার ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা। ফগ আছে ভাই। হ্যাঁ, চলুন যাওয়া যাক তাজমহল। এই এখন গল্ফ কার্টে বসে যাচ্ছি হচ্ছে, এরা এখন এইখানে এরাও নিয়ে আসবে, বুঝলি, কেনার জন্য, মাল কেনার জন্য। মাল আমরা কিনবো না, দেখবো। হ্যাঁ দেখবো। আর এই যে গল্ফ কার্টে করে প্রথমে এসে পার্কিং করতে হবে। পার্কিং করে আমরা নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছি, পার্কিংয়ে নিল 100 টাকা। এবার গল্ফ কার্টে 50 টাকা করে পার পার্সন। এবার যাচ্ছি তাজমহলের গেটে, 20 টাকা করে পার পার্সন, তারপর 50 টাকা করে পার পার্সন ঢুকতে লাগবে। গাইড নিলে একটুখানি তো ওরা আপনাকে ইয়ে করবেই, মানে লুটবেই, কিন্তু কিছু করার নেই। আর ব্যাপার হচ্ছে গাইডটা না নিলেও নয়, কেননা আমরা শুনবো সব ইতিহাস পাতিহাস, নাহলে কী করে হবে। বন্ধ করে নে, এটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আরে এইটা জ্যাকেটটা উপর অব্দি বন্ধ কর, ঠান্ডা লাগবে। কানে লাগছে। এই দেখুন, এই যাচ্ছি এখন তাজমহলের দিকে গল্ফ কার্টে করে। এরকম গল্ফ কার্টে করে সবাই আসে, 20 টাকা পার পার্সন টিকিট নেয়। এই গাইড নিল আমাদের কাছ থেকে 1500 টাকা নেবে আর কি, ঘোরানোর পরে। আপনাদের জন্য নেওয়া হলো যাতে আপনারা ইতিহাসটা শুনতে পারেন, ইতিহাস। আর টিকিট ফিকিট সব অ্যারেঞ্জ করবে, ফালতু আমরা লাইনে ফাইনে দাঁড়াতে চাই না, ওই জন্য নিলাম। আমাদের অনেক কাজ আছে, অনেক জায়গায় যেতে হবে। চলিয়ে এই গাইড দাদার সাথে এখন চলছি, হেঁটে হেঁটে ইতিহাস পাতিহাস সব বলবে, বলতে বলতে এবার নিয়ে যাবে। দেখা যাক, তাড়াতাড়ি এসো। এই এখন ঢুকছি। বিরাট ভিড় আজকে, হেভি ভিড় তাজমহলে। দেখা যাক, ভিডিও বন্ধ করলো, এন্ট্রি তো বাদ বানানো। সিকিউরিটি চেকিং চলছে, আর এইখান দিয়ে ঢুকবো এখন আমরা। আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন, খুব সুন্দর লাগবে ভিডিওটা, দারুণ। ওই যে এন্ট্রি হচ্ছে ওই দিক দিয়ে, মেয়েদের চেকিং চলছে, মেয়েদের চেকিং হয়ে আসবে। এই বন্ধুরা, উপরে দেখুন তাজমহল দেখা যাচ্ছে। প্লিজ স্ট্যান্ড হিয়ার। হ্যাঁ, স্ট্যান্ড হিয়ার। सभी लोग এই চলে আয়, ও বললে অনেক ছবির জায়গা পাবি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ঢোকার জায়গা। फर्स्ट टाइम योर हिस्ट्री, पहले यहाँ के बारे में बताऊंगा, फोटो बाद में सर। ঠিক আছে। तो वेलकम टू ताजमहल। मेरा नाम राहुल राठौड़ है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं इसको फोर्ट कोर्ट एरिया बोला जाता है। फोर्ट कोर्ट एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ 4 गेट है, 4 गार्डन है। जिस गेट से हमने एंट्री की, दिस इज वेस्टर्न गेट, एंड सेकंड गेट नेम इज साउथ गेट, एंड थर्ड गेट नेम इज ईस्टर्न गेट, एंड फोर्थ गेट नेम इज मेन गेट ऑफ ताजमहल। ये शाही दरवाजा है जो राजा महाराजा हुआ करते थे। दिस इज मेन गेट ऑफ ताजमहल। ये शाही दरवाजा है जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका एंट्री एग्जिट इसी गेट से हुआ करता था। और यहाँ 4 गार्डन है, 1 2 3 4, इसलिए इसको फोर्ट कोर्ट एरिया बोला जाता है। तो दिस इज मेन गेट ऑफ ताजमहल। दिस इज हाइट 105 फीट, एंड लुक एट दिस स्मॉल स्मॉल डोम। ये आपको छोटे छोटे डोम दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर, एंड 11 इन साइड, 11 बिहाइंड साइड, टोटल 22। तो उस समय कैलकुलेटर कैलेंडर नहीं थे, तो 1 साल में 1 डोम, 2 साल में 2, 3 साल में 3। तो इस तरीके से 22 ईयर्स लगे थे ताजमहल बनने में। 1631 स्टार्टिंग ताजमहल, 1653 कंप्लीट ताजमहल, एंड 20,000 वर्कर थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ताजमहल को बनाया था। ये आपको अरबिक में दिखाई दे रहा है ऊपर, ये जो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सूर्य फजर। हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये सुबह की प्रार्थना है, और वहाँ से एग्जिट करेंगे, उधर शाम की प्रार्थना लिखी हुई है। तो सायन बिल 3 वाइफ, 2 इज इंडियन, 1 इज पर्सियन। फर्स्ट वाइफ नेम इज फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ नेम इज सिर हिंदी बेगम, एंड थर्ड वाइफ नेम इज मुमताज़ बेगम। मुमताज़ की याद में वाइफ ताजमहल बनाया था। मुमताज़ का
मुमताज़ पर्सिया से बिलोंग करती थी। मुमताज़ का सेकंड नाम था अंजुमन बानो बेगम एंड शायन का सेकंड नाम था खुर्रम। शायन मुमताज़ से इसलिए ज़्यादा प्यार करते थे, 2 इंडियन बीवी थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। मुमताज़ के 14 बच्चे हुए, जिसमें से 8 बच्चे डिलीवरी के समय मर गए थे, 6 बच्चे बचे, 4 बेटे 2 बेटियाँ। पहले बेटे का नाम था दारा सिको, मुराद, सुरात, औरंगजेब थे वो चौथे नंबर के थे। 2 उनकी बेटियाँ थी, रोशन जाड़ा, जहां आरा। तो मुगल के लोगों का ये घर नहीं था, मुगल के लोगों का घर आगरा फोर्ट था। आगरे का आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का आगरा फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था। तो पहले वहाँ अकबर आए थे, उसके बाद उसके बेटे आए सलीम, सलीम का नाम था जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब। तो उनकी जनरेशन बाई जनरेशन आगरा फोर्ट में रही थी। तो उस समय ताजमहल के लिए आना जाना वेस्ट गेट से हुआ करता था, क्योंकि वेस्ट गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पे आगरा फोर्ट है। तो मुगल के लोग वेस्ट गेट को मुगल के टाइम पे वेस्ट गेट को नहीं बोल वेस्ट गेट को वेस्ट गेट के नाम से नहीं जानते थे। उस गेट का नाम रखा था फतेहपुरी गेट, क्योंकि उनकी पहली बीवी का नाम था फतेहपुरी। तो वहाँ फतेहपुरी बेगम के लिए मस्जिद बनाई है, तो दिस इज कॉल्ड नेम फतेहपुरी गेट। एंड सेकंड गेट नेम इसको लेबर कॉलोनी गेट, 20,000 वर्कर एंट्री एग्जिट ओनली साउथ गेट, तो दिस इज कॉल्ड नेम लेबर कॉलोनी गेट। एंड थर्ड गेट नेम इज ईस्टर्न गेट, वहाँ सिरहिंदी बेगम के लिए मॉस्क बनाई, तो दिस इज कॉल्ड नेम सिरहिंदी गेट। एंड लुक एट दिस स्मॉल स्मॉल रूम्स, दिस इज टोटल 210 रूम्स, क्योंकि उस समय मुगल के लोग थे अपनी लेडीज़ को बाहर नहीं जाने देते थे, तो यहीं पर ही मीना बाजार लगता था, शॉपिंग सेंटर। ओके, तो ताजमहल ऑन सिमेट्रिकल बिल्डिंग, यहाँ हर चीज़ की रेप्लिका है, लेकिन एक चीज़ सिमेट्रिकल नहीं है, वो है शाया की ग्रेव। वो इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ताजमहल बनने के बाद 1666 में उनकी समाधि रखी गई थी ताजमहल बनने के बाद। तो ताजमहल ऑन सिमेट्रिकल बिल्डिंग, शाया की ग्रेव सिमेट्रिकल नहीं है। प्लीज कम दिस। চলো 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 তাজমহলের মেন গেটে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি। এখন এখান দিয়ে ঢুকলেই তাজমহলটা দেখা যাবে। একটা অতি সুন্দর একটা মানে জিনিস আর কি, মানে স্থাপত্য যেটা বলে, ওয়ান্ডার। সো अपना नंबर दीजिए क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे। এখন ওই যে ফটো সেশন চলছে, দেখাচ্ছে ওইটা তাজমহলের গেট, তাজমহলের গেট দেখাচ্ছে। এত ভিড় এখানে আজকে, প্রচুর ভিড়। চল, এই তাজমহলের মেন গেট এটা, পুরো এন্ট্রি করলাম তাজমহলের মেন গেট দিয়ে। এবার দেখুন স্থাপত্যটা কিরম। চলো চলো চলো, এই হচ্ছে তাজমহল, দেখুন বন্ধুরা। हाँ। फोटो पॉइंट इज देयर। यस, यू वांट फोटोज लाइक दिस कटा गेट হ্যাঁ চারটে चारटे करना है 4 गेट नहीं नहीं करना है हमारे। এত সুন্দর, এই যে যত সামনে যাচ্ছি তত বন্ধুরা এটা আরও ভালো লাগবে, ভালো লাগতে থাকবে। মানে এত সুন্দর একটা জিনিস, সামনে থেকেই দেখার জিনিস। চলুন যাওয়া যাক। Straight side and back side evening. Okay, and look at this white Taj Mahal. This is side 243. And look at this 4th pillar. You can see this is straight and little bit tilted. सर ये आपको 4 मीनारें दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है? सीधी, हल्की सी झुकी हुई। यस, ये हल्की सी झुकी हुई इसलिए बनाई गई है, भविष्य में कभी अर्थक्वेक आए, भूकंप आए तो ये पिलर बिल्डिंग पे ना गिरे, आउटसाइड क्योंकि ऐसे पिलर बन सकते हैं। 15 साल लगे, क्योंकि इसमें स्टोन और नक्काशी का काम बहुत हुआ है। और वाइट वाला मार्बल भी हुआ है ना, ये मंगाया जाएगा मकराना फ्रॉम राजस्थान, यहाँ से 360 किलोमीटर दूर है। और रेड वाला मार्बल भी हुआ है, ये मंगाया जाता फतेहपुर सीकरी, यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। उस समय कोई ट्रेन नहीं चलती थी, 1000 एलिफेंट की हेल्प से मार्बलों को लेकर आए थे। तो ताजमहल के अंदर 53 पानी के फाउंटेन है, 16 गार्डन, एक गार्डन है, एक गार्डन है। तो हमको ये दर्शा था 1653 में ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ था। तो मुमताज़ की मौत अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त डिलीवरी के समय 1630 में 1630 में, लेकिन मुगल के लोगों ने उनकी डेड बॉडी को यहाँ नहीं रखा था, बुरहानपुर 1631 में तब ताजमहल का काम चालू हुआ, तो वहाँ से डेड बॉडी को निकाल कर यहाँ शिफ्ट किया गया था। तो मुमताज़ के मरने के बाद 1 साल बाद ताजमहल का काम 1631 में लगा, मुमताज़ के मरने के। ओके, आइए, थैंक यू बाबू। वो लेकिन वो लोग मुस्लिम थे, मुगल के लोग थे, उन्हें नमाज के लिए मस्जिद भी चाहिए, तो शायना ठीक इसके सामने उसकी रेप्लिका बनाई। तो एवरी फ्राइडे लोग ताजमहल, हर फ्राइडे को ताजमहल इसलिए बंद रहता है कि यहाँ पे लोकल मुस्लिम लोग हैं वो नमाज के लिए आते हैं, तो नमाज टाइम इज ओपन है, नमाज के बाद बंद कर दिया। टूरिस्ट नोट अलाउड, VIP नोट अलाउड, एवरी फ्राइडे इज क्लोज ताजमहल।
ये आपको फुल फ्लोर की डिजाइन दिखाई दे रही है। दिस इज नोट कलर नोट पेंटिंग, अगर कलर पेंटिंग होता पानी में वॉश हो जाता है। ये सारे सिविल पीसेस स्टोन्स हैं जो अलग अलग 16 कंट्री से मंगाए गए थे और वाइट मार्बल में हाथ से कट करके इसमें सेट किए गए थे। तो यही वाले स्टोन फुल मूड में ग्लो करते हैं लाइक दिस, देखिए लाइक दिस इज नोट कलर नोट पेंटिंग। यही वाले स्टोन सर फुल मूड में ग्लो करते हैं। ओके, एंड जो आपको अरबिक में दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कुरान की आयतें, होली बुक ऑफ कुरान, क्योंकि ये 14 चैप्टर लिखवाए गए थे कुरान की आयतें। 14 चैप्टर इसलिए लिखवाए गए थे क्योंकि ताजमहल को कोई नजर না উপরে যে কারুকার্য করা আছে সেইটা হচ্ছে পাথর দিয়ে করা। যখন ফুল মুন হবে গ্লো করবে, এটা গ্লো, মানে দারুণ একটা ব্যাপার আর দারুণ আর কি। तो अंदर दो समाधि है। 1631 में मुमताज की रखी गई थी, 1666 में शाहजहां की। असली वाली समाधि 1 फ्लोर डाउन है बेसमेंट के अंदर, लेकिन वो बंद है अभी। अभी लोग इसकी रेप्लिका देखते हैं। इसका जो शाहजहां और मुमताज का ग्रेव है ना समाधि, अभी लोग इसकी रेप्लिका देख रहे हैं लाइक डुप्लीकेट। रियल वन इज क्लोज, क्योंकि वो एक साल में 3 डेज ओपन, तब कोर्स होता है शाहजहां और मुमताज का डेथ एनिवर्सरी, तब 3 दिन के लिए फ्री कर देते हैं, कोई भी क्राउड नहीं लगता। लेकिन सॉरी, क्राउड बहुत रहता है, फ्री कर देते हैं। लोग चादर चढ़ाते हैं, तो दिस इज रियल वन, ये असली वाली है। जो लोग चादर चढ़ाते हैं इनसे दुआ मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन की वजह से कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो ताजमहल के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें भगवान मानते हैं। तो इस तरीके से चल, लेकिन क्राउड बहुत रहता है, क्योंकि इंडियन टिकट इस 50 एंट्री एंड अंदर जाने के लिए 200। जो बाहर से आते हैं फॉरेनर उनका 1300 का है, इसलिए वो आईडी मांगते हैं। जो एशिया से आते हैं उनका 75 होता है। तो मुगल के टाइम पे आगरा सिटी कैपिटल था इंडिया का, इंडिया भी बहुत बड़ा था। तो मुगल के लोग आगरा सिटी को मोहब्बत की नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ तो ताजमहल इज सिंबल ऑफ द ओके। यस मैम, वो जमुना नदी की नदी है उसकी वजह से। देखो मैं दिखाऊँ एक, দেখুন বন্ধুরা কেমন লাগছে জানাবেন। আজকে ভিড় খুব, চারিদিকে ভিড়ই ভিড়, দেখুন ফুল ভিড়, খুব ভিড় এখানে আজকে। যাই হোক, 2 জানুয়ারির দিনে তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আর খুব ভালো লাগছে আর কি, দারুণ ব্যাপার। চলুন আগে যাওয়া যাক। कि जो भी गेस्ट आते थे उनके वेलकम के लिए ढोल लगा रहे थे, स्वागत किया जाता था। तो दिस इज कॉल्ड नेम ड्रम हाउस नौबत। लुक एट दिस वाइट प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, क्योंकि मेन गेट से लेकर वहाँ तक की दूरी बराबर है और ताजमहल से लेकर वहाँ तक की दूरी बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड नेम सेंटर पॉइंट। ओके, तो आई एम क्लिकिंग नाइस फोटो इज दिस। ওখানে ভালো ছবি আসবে। गोप्रो अलाउड नहीं, मतलब वीडियोग्राफी है ना, तो इसमें करेंगे। ताजमहल, ताजमहल देखते কিন্তু খুব সুন্দর না? হ্যাঁ, উপরে লোক কম দেখেছিস, উপরে মনে হয় আলাদা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। শালা মেয়েগুলো ঠান্ডা লাগছে না রে? পুরো বাবা, সব রিল বানাচ্ছে। বন্ধুরা রিস্ক নিয়ে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি, এখানে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউড না, কিন্তু বানাচ্ছি তাও আপনাদের দেখানোর জন্য। এই দেখুন স্থাপত্যগুলো দেখুন, ও দারুণ, দেখার মতন। ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড যা বলে, এটাই ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড আর কি, 7 ওয়ান্ডারের মধ্যে একটা, তাই তো? তো তার জন্য এইটা হচ্ছে 7 ওয়ান্ডারের মধ্যে একটা। দেখে নিন বন্ধুরা, সামনে থেকে তাজমহল দেখাচ্ছি, এটা বাংলা চ্যানেলে। দেখুন রিস্ক নিয়ে ভিডিওগ্রাফিটা করছি, এখানে করা অ্যালাউড না। এবার এন্ট্রি করব, এন্ট্রি করার পরে ভেতরে যাব, উপরে যাব, সব দেখাবো। চলুন যাওয়া যাক। अलग कंट्री से मंगाए गए थे, वाइट मार्बल में हाफ इंच कट करके सेव किए गए थे। इसको बोलते हैं इनलेट वर्क। किसी मार्बल के अंदर कोई भी स्टोन शिफ्ट करना, उसको इनलेट वर्क बोला जाता है। हमारी भाषा में बोला जाता है पच्चेकारी। तो ये स्टोन से एक पीस निकाल भी दिया मैंने। तो ग्रीन वाला नहीं ग्लो करेगा, ये वाला नहीं ग्लो करेगा, सिर्फ रेड वाले स्टोन ग्लो करेगा। और ये पर्सियन लोगों की डिज़ाइन थी, तो पूरा मार्बल को कट करके ये फ्लोवर्स की डिज़ाइन बनाई गई थी। इसमें भी बहुत हार्ड वर्क होता है मैम, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, सारा हैंडमेड बनाया था। और ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना मैम, इसको बोलते हैं डायमंड कटिंग। डायमंड कटिंग इसलिए बनाई थी, मकड़ी कभी जाला नहीं बना सकती इसको। जो मकड़ी होती है ना, वो जाला नहीं बना सकती इसको। तो प्लीज़ आई एम क्लिकिंग फोटो मैम, गिविंग योर
सर आइए सर यहाँ पे चलिए हाँ जी हाँ जी দেখুন বন্ধুরা উপর দিয়ে দেখাচ্ছি তাজমহলের ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আপনাদের জন্য অনেক কিছু দেখাচ্ছি চলুন ভেতরে যাওয়া যাক ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউ না সমাধি আছে সো আবার বাইরে বেরিয়ে করুন এই তাজমহলের ব্যাক সাইড এটা এই পিছন দিকে হচ্ছে যমুনা দেখুন এখানে দেখাচ্ছি তাজমহলের ব্যাক সাইড এটা আর এইদিকে হচ্ছে যমুনা রিভার অনেক সিনেমাতে শুটিং ফুটিং হয় এখানে মাঝে দেখেছেন হয়তো এইদিকে যমুনা রিভার ওইদিকে হচ্ছে ব্ল্যাক তাজমহল হালকা তৈরি হচ্ছিল এখন ভাই বলবে কি ব্যাপার সেইটা বলে দেবো इतना बड़ा था क्या? हाँ। अब मैं प्लीज़ इसके बारे में बताऊँगा। হ্যাঁ हेलो सिस्टर प्लीज़ कम क्लोज। तो ये यमुना नदी है, ये दिल्ली से आती है, इलाहाबाद जाती है। दिल्ली में केमिकल की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, इसलिए इसका कलर ब्लैक है, केमिकल डाल देते हैं। लेकिन मथुरा का पानी साफ मिलेगा क्योंकि वहाँ बांध है, वहाँ पानी रोका जाता है, वहाँ पानी है। लेकिन यहाँ पानी मानसून में आता है सितंबर और अगस्त के महीने में। 2023 के अंदर अगली साल 2023 के अंदर इतना पानी आया था, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था यमुना नदी ने यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो यमुना नदी के किनारे कोई भी आप किसी भी नदी के किनारे घर या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओगे ना तो मिट्टी ढक जाएगी। तो साया ने इसके फाउंडेशन के लिए क्या किया था मैं बताऊं। एक्चुअली में मैम यहाँ इसके फाउंडेशन के नीचे 85 वेल नीचे खुदवाए गए थे, 85 कुएँ। और उस समय कोई सीमेंट वगैरह नहीं चलती थी, तो दाल चीनी गोंद और इन सबों को मिला के उसका पूरा सीमेंट बनाया था और उन बैल को भरे गए थे पूरे नीचे तक गहराई तक। उसके बाद एक लकड़ी आती है सागवान, उसके ऊपर सागवान की लकड़ी लगाई गई थी और सागवान लकड़ी ऐसी होती है जिससे कि उसे पानी की नमी मिलती रहेगी, वो लाइफ टाइम के लिए मजबूत रहेगी। तो इसका फाउंडेशन सागवान की लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। अब जैसे कि एक और कारण था यमुना नदी के किनारे बनाने का, 20,000 मजदूर थे। ताजमहल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसके मटेरियल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मजदूर लोग पानी लेने दूर ना जाए, पास के पास उन्हें पानी भी मिलता रहे। अब जैसे कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में वाइट ताजमहल बनाया था, ऐसे ही शाहजहां अपने लिए खुद के लिए वहाँ ब्लैक ताजमहल बना रहे थे, वो खाली जगह ना वहाँ। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था रेड फोर्ट के अंदर। ये घर है फॉग में दिखाई नहीं देगा, कैद इसलिए कर लिया था क्योंकि उस समय इसे बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ था। अगर वहाँ पे भी ताजमहल बनता पैसा खर्च होता, जो उनका शाही खजाना था शाहजहां का वो खर्च हो जाता। तब औरंगजेब के पास पैसा ही नहीं रहता, वहाँ ताजमहल में पैसा खर्च हो जाता, तो वो राजा कैसे बनते, उनकी प्रजा भूखी मर जाती। इसलिए अपने पापा को 8 महीने के लिए कैद कर लिया था रेड फोर्ट में, वहाँ जेल है। और उसके बाद 8 महीने कैद रहे थे। उसके बाद 1666 में उनकी मौत हो गई। तो उनकी 2 बेटियां थी, रोशनजहां जहानारा, उन्होंने अपने पापा की डेड बॉडी को अपनी मम्मी के बराबर में दफना दिया। तो इसलिए उनकी कब्र सिमेट्रिकल नहीं है। अगर वहाँ ब्लैक बनता तो वहाँ होता उनकी कब्र और यहाँ मुमताज़ की कब्र, तो वो शाहजहां का होता कि मुमताज़। कितना पैसा खर्चा हुआ था कुछ आइडिया है 4 करोड़ सर, 400 करोड़। 400 या 4 करोड़ नो 4 करोड़ ओनली 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ में उस टाइम ताजमहल बन ताजमहल जाता। बना दिया था। और इस समय तो कुछ पता ही नहीं है कितना पैसा खर्च हो गया। और पहली बात तो ऐसा बना ही नहीं सकते। 4 करोड़ में अभी घर बनते हैं लोग। हाँ लेकिन उस समय 4 करोड़ उस समय का 4 करोड़ तो कितना होगा बोल तो उस समय का 4 करोड़ आज का बहुत हद पार हो जाएगा। तेरे वाइट हेड मैं है हिस्ट्री बता रहा हूँ, हाथ क्यों कटवाए गए थे। एक्चुअली में हकीकत में हाथ नहीं कटवाए गए थे क्योंकि जो 20,000 मजदूर थे वो यहाँ के नहीं थे, पर्सियन थे। तब ताजमहल बनाने के बाद जो वर्कर लोग थे वो अपने देश वापस जाना चाहते थे, लेकिन शाहजहां को ब्लैक ताजमहल भी बनवाना था उनसे। तो उनको रोकने के लिए एक ऑफर दिया, अगर आप इंडिया में रहोगे तो मैं घर दूंगा, खाना दूंगा, पैसा दूंगा। वो ऑफर इसलिए दिया अगर वो वहाँ जाते इससे भी खूबसूरत कुछ चीज़ बनाते तो उसकी वैल्यू क्या रह जाती। लोग वहाँ जाते यहाँ नहीं आते, वो यादगार बन जाता। तो उन वर्करों को खाना पैसा लाइफ टाइम के लिए मनी दी। उन्होंने शाहजहां का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उनको खाना पैसा और लाइफ टाइम के लिए पैसा दिया। लेकिन शाहजहां ने उनसे एग्रीमेंट करा लिया था कि ताजमहल बनाने के बाद अगर बनाओगे तो ब्लैक ताजमहल बनाओगे, नहीं तो अन्यथा कोई काम नहीं करने दूंगा मैं। तो उन मजदूरों से लाइफ टाइम के लिए शाहजहां ने काम नहीं कराया गया था। तो 20,000 मजदूर थे ना, उनसे कोई काम नहीं करवाया गया था। तो हकीकत में हाथ कट नहीं किए थे, उन लोगों को काम नहीं करने दिया था शाहजहां ने, क्योंकि उनको घर पैसा और लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया। और उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, सारा हाथों से बनाया गया था। और स्टोन्स का काम बहुत महीन होता है जो ग्लो कर रहे थे, उनकी फिंगरें घिस गई थी क्योंकि उन्हें 22 साल लगातार काम किया था। काम करते करते उनकी फिंगरें घिस चुकी थी। तो हकीकत में हाथ कट नहीं किए थे, उनको काम नहीं करने दिया था लाइफ टाइम के लिए। तो आज भी उनकी 17 जनरेशन है जिन लोगों ने ताजमहल बनाया है। आज भी वो जनरेशन वर्क यही करते हैं जो मकराना से मार्बल लाए थे, क्योंकि मकराना से गवर्नमेंट ने
मार्बल बैन कर दिया है, तो वही उन्हीं लोगों को मिलता है। आज भी उनकी जनरेशन काम करती है, स्टोन्स कैसे ग्लो करते हैं, कैसे चमकते हैं, जो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। जनरेशन में उन्हीं लोगों ने मिनी ताजमहल बना के तैयार किया है, जो सनराइज सनसेट में कैसा दिखता है। और यहाँ पॉल्यूशन की वजह से कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो ताजमहल के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ दो चीज़ ज़्यादा फेमस है, जैसे कि यहाँ का लेदर। एक्चुअली आगरा लेदर इज़ वेरी फेमस। यहाँ से लेदर बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो मैं आपको रास्ते में ही आपको टिकट आउटलेट लेदर फैक्ट्री दिखाऊंगा, और वहीं पर ही मिनी ताजमहल है, जो सनराइज सनसेट फुल मून में कैसा दिखता है वो आपको मैं लाइव मिलता है आपको वहाँ दिखाऊंगा। और वहीं जनरेशन, उसके बाद यहाँ का फेमस है आगरा का, वो भी मैं आपको वाह ताज बोलिए, वाह ताज बोलिए। वाह ताज बोलिए, वाह। এইখান দিয়ে দেখাচ্ছি তাজমহলের ওপরটা। ওই দেখুন পিছনে যমুনা, এই হচ্ছে তাজমহলের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। আর কেমন লাগছে বন্ধুরা জানাবেন ব্লগিংটা, আশা করি ভালো লাগছে আপনাদের। তো ভালো লাগলে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করুন। নিজের কাজের ফাঁকে এইসব সময় বার করে ঘোরাটা খুব চাপ, তাও করেছি আপনাদের জন্য। তো শুনুন, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। এরপরে যাব মনে হচ্ছে ফতেপুর সিকরি, কেননা ওইটা বন্ধ হয়ে যাবে একটু দূরে, আর ওইটা একটু ভালো। সো আগ্রা ফোর্টটা হবে না, তো ফতেপুর সিকরি সেমই জিনিস, ওখানেও একটা ফোর্ট আছে। সো দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। এই এবার তাজ থেকে বেরোবো, এখান থেকে তাজমহল ঘোরা শেষ, এবার যাব হচ্ছে ফতেপুর সিকরি। সো বন্ধুরা কেমন লাগছে ট্যুরটা জানাবেন, আশা করি আপনাদের ভালোই লাগছে। আর এই হচ্ছে তাজমহল একদম সামনে থেকে, সামনে মানে সাইডের থেকে। এই হচ্ছে তাজমহল। এই তাজ দেখে এবার বেরোচ্ছি, পার্কিংয়ের দিকে যাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা কি জোরে চলছে রে ভাই গাড়িটা, ব্যাটারি গাড়ি এত জোরে চলে না। তো দেখুন বন্ধুরা কেমন লাগছে, ব্যাটারি গাড়িতে সব বসে রয়েছি সুন্দর করে। চলুন ফতেপুর সিকরি যাওয়া যাক।